Declaration made by King George V in 1911 in Delhi Darbar, it turned out to be a blessing in disguise for the Indians. The annulment of the partition of Bengal, it made that small group of liberal Muslims become more proactive or forceful. Now they were, in spite that prior to 1911 they were having no say as far as the politics of Muslims in India was concerned. The small group of liberal Muslims, now they came forward and now they were having some logic, their justification to prove that the British are neither of the Hindus nor of the Muslims. They are self-centric people, and whenever and every action taken by the every decision or every policy or every action taken by the British government in India was 100% based on their political experience ही वो वही करते हैं हिंदुस्तान में जो उनको फ़ायदा होता है, जिससे वो ना हिंदुओं के फेवर में है. Because when they needed the support of the Muslims of India, they promised to partition Bengal in such a way that it is going to benefit the Muslim community of Bengal. And by rendering one obligation to the Muslim community of Bengal, they facilitated the creation or formation of the Indian Muslim League. And after the formation of the Indian Muslim League, they simply made a loud cry. They simply started saying to the whole world that we are ready to concede every concession to the people of India. But because the Hindus as well as the Muslims of India, the two major communities of India, they both are in fact my subjects. And naturally, prior to taking any decision, we can never be prejudiced in favor of any of the community. Until both the major communities of India, they are going to come to a consensus. जब तक हम सहमति नहीं बनाते हैं, we can never take decision regarding India. ठीक है. And तो इसका मतलब होता है कि formation of the Indian Muslim League was 100% to the favor of the British government in India. Now they got a pretext to say to the world that why they are ruling over India or why they are perpetuating their rule over India. Now they were having some logic or some science to say to the world that they are genuine people and therefore they are ruling over India. ठीक है ना. And in between 1905 and 1907, when the Hindus of India or the Indian National Congress, when they became very problematic for the British government, just to appease them, उनको अपीज करने के लिए, हिंदू कम्युनिटी को अपीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 दिया, जिसमें they gave the concession that was to an extent it was definitely to the favor of the Indian National Congress. And in 1911, just to appease the Hindus, they simply are declaring annulment of the partition of Bengal. ठीक है ना. तो if you are going to make a sequence and sequel of events that took place in India in between 1903 Shimla Conference and 1911, so naturally कि now the Muslim small group of liberal Muslims, now they were having some justification to say to the world or say to the fanatic orthodox Muslim community as well as the Hindu communities of India that the British are self-centric people, they are narcissists to an extent, and therefore they are neither to the side of the Hindus nor to the side of the Muslims. They are 100% to the favor of the British. ठीक है. So you can say that the sense of heterogeneity that has developed in India because of the formation of the Indian Muslim League, to an extent it ended, and now a sense of homogeneity was seen to be created in between the Hindus and the Muslims of India, and that was actualized in form of Lucknow Pact in 1916. Clear हो गया था. अब आते हैं 1913 में Muhammad Ali Jinnah, he became 1912-13 Muhammad Ali Jinnah, who joined the Indian National Congress way back in 1904. After the formation of the Indian Muslim League, he remained a member of the Indian National Congress. And in 1912, he became a member of the Indian Muslim League. ठीक है ना. और ये कहा जाता है, if you are going to study this line, or if you are going to gather the information from some of the texts, that that Muhammad Ali joined the Indian Muslim League in 1912. So you are the first impression that you are going to draw from this behavior of Muhammad Ali Jinnah will be that because he was a Muslim, he joined the faction of the Muslim, the party of the Muslims. But this was not the reality. ये कहा जाता है कि Muhammad Ali Jinnah, since his inception as a politician in India, he was in fact he was considered to be the greatest ambassador of Hindu-Muslim unity. Hindu-Muslim unity का greatest ambassador माना जाता था उनको, and he had gone over to the Indian Muslim League with something to achieve. और achieve क्या करना था उनको पता था कि till I am being a Muslim, till I am going to remain a member of the Indian National Congress,
most of the fanatic Muslim members of the Indian Muslim League, they are never going to understand my value. They are never going to have money. I will not be having my own acceptance as far as the Indian Muslim League and the Muslim community of India is concerned. And therefore, as soon as I am to become a bona fide member of the Indian Muslim League, now I will be having proper time, as well as the opportunity, as well as the opportunity to discuss every matter with the fanatic Muslims. And now I will be in a better position to convince the fanatic Muslims or Indian Muslim League that it was folly of the last resort for the Hindus as well as the Muslims if we both are going to remain diverted, if we both are going to remain away from each other. It is best time for the Hindus as well as the Muslims of India that we both should come together and collectively we should lodge a complaint or lodge our independence movement against the British government. ठीक है, तो नेचुरली कि अब जैसे ही क्रॉस किया था, एक लाइन अगर याद है हमको, तो हमारा इंप्रेशन मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में 1912 के मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इट विल बी डिफरेंट. बट इफ आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग, बिकॉज ही वॉज द मैन हु मैसिनेटेड द लखनऊ पैक्ट. 1960 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ, because according to which the Indian National Congress, Indian Muslim League, the radicals and the moderates, almost all diverging factions of the Indian politics that has been witnessed after 1906, it simply came together. Everyone came together. So naturally now India in 1916 it was now a homogeneous political lot. ठीक है ना. तो फायदा हुआ, उसी फायदा हुआ. ये सारा का सारा करता था कौन थे? लखनऊ गैंग. इट वॉज मैसिनेटेड बाय लखनऊ गैंग विच वॉज हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हेड किया जा रहा था ये लखनऊ गैंग. स्मॉल ग्रुप का मुस्लिम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज एजुकेटेड मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, स्कॉलर्स थे. और उसका इट वॉज दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ लखनऊ गैंग मेंबर्स. इट वॉज देवर बीइंग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड इट फैसिलिटेटेड द लखनऊ पैक्ट. ठीक है ना. तो ये किया था ना वो काम. अब आया 1914 में. नाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गोइंग टू गेट एक्सटेंसिव. बहुत बड़ा होगा और बहुत बृहद होगा. बढ़िया समझना. हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट. वी आर डिस्कसिंग दैट थिंग. देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ऑन 28 जुलाई 1914, इट प्रेसिपिटेटेड बिकॉज 1800. ये ट्रिपल अलायंस का जहाँ तक सवाल है, इट वॉज ऑलरेडी फॉर्म्ड इन 1883. एज सुन एज द थ्री politically and militarily dominant countries of Europe, Germany, Italy and Austria-Hungary, as soon as these three militarily strong countries of Europe, they came together, after 1883 they started creating nuisance for one country, England, France or Russia. वन और दी अदर कंट्री ऑफ ट्रिपल इंटेंट का इंग्लैंड हो चाहे फ्रांस हो चाहे रशिया हो, इसके लिए दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर आइदर इंग्लैंड और फॉर फ्रांस और फॉर रशिया. बट टिल दे वर इंडिविजुअली स्टैंडिंग, जब तक ये लोग अकेले खड़े थे, तो नेचुरल कि दे ऑलवेज टू स्पीक आउट ऑफ द वे ऑफ द डर्टी इंटेंशन ऑफ एनी ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ द जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, बिकॉज दे वर नोइंग दैट एज सुन एज वी आर गोइंग टू रिटेलिएट इन देयर सेम ओवरटोन, तो बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड अ मिलिट्री अलायंस, तो दे आर सिंपली गोइंग टू स्क्वीज अस. इंग्लैंड जानता था कि ये तीनों अगर तीनों जब तक अकेले हैं, एक साथ इकट्ठा हैं, अगर कुछ खराबी कर भी रहे, कुछ गलती कर भी रहे हैं, उसको नज़रअंदाज करो, ओवरलुक इट. अदरवाइज इफ आई एम गोइंग टू रिटेलिएट देयर रॉन्ग डीड विथ अ रॉन्ग डीड, तो दे आर कलेक्टिवाइज्ड and therefore they are going to collectively defeat, or they are simply going to crush and defeating they are simply going to go for a money. England will be defeated, it will be brought on to shambles, कह सकते हो, बर्बाद कर देगा. फ्रांस भी वही सोचता था, रशिया भी वही सोचता था. तो जब तक ट्रिपल इंटेंट के मेंबर कंट्रीज दे वर इंडिविजुअली स्टैंडिंग, द चांसेस फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ वॉर इट सीम्ड अ डिस्टेंट क्राई. बहुत दूर का ये चीज़ था, होना चाहिए था, हो भी सकता नहीं. पर as soon as in triple intent came into formation in 1907, जैसे ट्रिपल इंटेंट का फॉर्मेशन हुआ 1907 में, वैसे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, when these three other countries of Europe, when they came together, now it became a possibility that in near future, because if they are going to still continue any nuisance against any of member countries of the triple intent, so because they have already been collectivized, so naturally they are also going to retaliate.
रिटेलिएट करेंगे, और रिटेलिएट करेंगे तो नेचुरली कि दिस वॉर इन बिटवीन एनी कंट्रीज ऑफ ट्रिपल इंटेंट और ट्रिपल अलायंस इट इज मे एस्केलेट इनटू अ फुल फ्लेजेड वॉर एंड इट मे टर्न आउट टू बी अ मेजर वॉर। ठीक है ना। तो 1907 के बाद इफ यू आर गोइंग टू स्टैंड योरसेल्फ और द पॉलिटिकल लीडर्स और इनफैक्ट द डिप्लोमैट्स ऑफ कंटेम्परेरी वर्ल्ड दे वर अंडरस्टैंडिंग एज सून एज 1907 हैपेंड, as soon as triple intent came into formation, now everyone has already started anticipating a major war in near future, and everyone was knowing that if this war is going to take place, this war is going to turn out to be a huge war, because all six major countries of the world, they have clashed with each other। ठीक है। और ये कहा जाता है कि जैसे जैसे as soon as it was moving forward, 28 जुलाई के बाद 1914 के बाद जैसे जैसे ये वार आगे बढ़ता गया, इट वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर टफ वॉर, बिकॉज ये कहा जाता है इट वॉज सच अ क्लोज वॉर दैट ये कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस दे अग्री दैट अ सिंगल मिस्टेक कमिटेड ऑन पार्ट ऑफ ट्रिपल अलायंस वुड हैव कॉस्ट देम द वॉर, अ सिंगल मिस्टेक कमिटेड ऑन पार्ट ऑफ ट्रिपल इंटेंट वुड हैव कॉस्ट देम द वॉर। एक गलती अगर ट्रिपल अलायंस किया होता तो हार जाता, अगर ये गलती ट्रिपल इंटेंट किया होता तो ये हार गया होता। तो इसका मतलब होता है कि ऑल द 6 मेजर कंट्रीज ऑफ द ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल इंटेंट वर हैविंग नो लिबर्टी ऑफ कमिटिंग अ सिंगल मिस्टेक। एक भी मिस्टेक करने का लिबर्टी किसी के पास नहीं था। ऐसे समय में इंग्लैंड ने क्या किया, हाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विथ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये देखते हैं कि इंग्लैंड ने जैसे ही ये देखा कि ये वार इज टर्निंग आउट टू बी अ डेंजरस वॉर, 1914 में इट इंक्लूडेड द नेम ऑफ इंडिया इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंस्पायर दैट इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड था, पर इंडिया का नाम डाल दिया अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। तो नेचुरली की स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया हु वर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड इंक्लूडिंग नेम ऑफ इंडिया इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे वर अनॉयड। अब उनको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई इंडिया हरसेल्फ इज इनफैक्ट अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, व्हाट द हेल, एंड दिस वॉर इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ इम्पीरियस राइवलरी, because this group of triple alliance member countries they needed colony, they were hungry for colony, and these three member countries of triple intent they had to safeguard their colonies, अपने colonies को बचाना था इनको, और इनको colony चाहिए था। तो imperialist rivalry was in fact the crux of the movement that brought both the major faction of military groups of Europe onto a war footing। ठीक है। अब ऐसे समय में दे इंक्लूडेड द नेम ऑफ इंडिया टू द फर्स्ट वॉर। तो वन ग्रुप ऑफ एलिटिस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया हु वर अंडरस्टैंडिंग और हु यूज्ड टू एनालाइज एवरी डिटेल्स ऑफ एवरी political decision that was taken by the government, now they came to a conclusion that there was definitely something dirty behind this decision of the British government। क्या decision था? उनको लगा कि because they wanted to use the human as well as material resource of India, इंडिया का मानव को कहेंगे कि भाई आप भी फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ रहे। को ये पता था पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस में था कि अगर ट्रिपल इंटेंट दिस ट्रिपल इंटेंट इज गोइंग टू विन द वार फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो दे ट्रिपल इंटेंट दिस एज अलायंस ग्रुप दे आर सिंपली गोइंग टू इम्पोज वार इंडेमनिटी ऑन ट्रिपल अलायंस, माने वार का हार जाना। और ये रियलिटी में दिखता है तुमको कि the first terms and conditions, if you are going to look into the first terms and conditions of the of the Treaty of Versailles that was signed in between Triple Entente and Germany, उसमें पहला लिखा हुआ था कि Germany will have to take the total moral responsibility for every wrong or every casualty that was meted out to man because of the First World War, and she will have to pay the war indemnity that was equal to 3 years GDP of Germany। जर्मनी का 3 साल का जो GDP था उतना बराबर उतना जर्मनी को ये देना था, वार का हार जाना। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस था। अगर मान लेते ये हार गया होता तो उनको पता था, पॉलिटिशियंस को पता था इंडिया में कि अगर ये लोग हार जाएंगे बिकॉज इट्स अ क्लोज वार, हारने का चांसेस है। इफ दे आर हैविंग द चांसेस ऑफ 50% चांसेस ऑफ गेटिंग डिफीटेड, तो दे आर ऑल्सो हैविंग 50% चांसेस ऑफ गेटिंग डिफीटेड। अगर ये हार जाता है तो वार पता चला कि अगर जर्मनी इज गोइंग टू डिमांड 100 बिलियन $100 बिलियन अगर डिमांड करेगा
तो इंडिया नाम होगा तो कहेगा कि इंडिया को कहेगा कि 5 या 10 बिलियन डॉलर तुमको भी कंट्रीब्यूट करना होगा, 10 बिलियन डॉलर्स दो। इंडिया हिंदुस्तानी खुद भूखे नंगे रहो और इंडिया का पैसा जाके इंग्लैंड के, चूँकि हार गए हैं हमारे राजा साहब, इसलिए आप जाके वहाँ पे दे दीजिए जर्मनी को, ठीक है ना। तो द पेमेंट ऑफ और वॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडियन साइड in paying the war indemnity by England, it would have been very sinister for India, because India का बजट जो था उस समय 90% लोग भूखे नंगे थे यार। उसमें अगर एक किसी तरह का परेशानी या गवर्नमेंट का सपोर्ट जीरो अगर हो गया होता तो नेचुरली it would have been very dangerous for India, and therefore the elite politicians of India who were very small minority था इंडिया में, but they were understanding everything. They were annoyed by the British action of pulling India into the first world war, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली 0.1% तो है elitist Indian politicians, but they are in fact the engine that is going to train every bogies behind them. इंडिया का 99% लोग जो हैं वो उन्हीं के महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के पीछे चलेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे। बाकी हिंदुस्तानी दे डोंट हैव द ब्रेन, और इवन इफ दे आर हैविंग द ब्रेन, तो their total brain is 100% preoccupied in fetching bread and butter for them, bread or namak for them. So they don't have enough time and energy and the brain to formulate how they are going to strategize India's independence, or what British was doing good or bad. And because they were Indian people, because they were innocent people, so they were having 100% faith on their leaders. उनके लीडर्स पे, अपने लीडर्स पे फेथ करते थे कि नहीं, महात्मा गांधी ने कह दिया या किसी ने कह दिया ये लीडर ने, तो हम मानते हैं आपकी बात। हर बात सुन रहे। तो वन स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडिया, इट वाज नाउ ऑनर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग अगेंस्ट इंग्लैंड और नॉट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अगेंस्ट में सोचना शुरू करेगा कि नहीं। सो एक तो ये हो गया। दूसरा बात ये होता है कि जस्ट टू मीट द एनहांस्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड कारण क्या है कि जस्ट टू मीट द एनहांस्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू एंड द अरियर्स फ्रॉम द पुअरेस्ट ऑफ द इंडियन पेजेंट्स। पहले क्या होता था, टैक्टिस ये था क्या, इसको मिटा दें, हर हर महादेव भी आ रहा का आ रहा है। देखो जैसे 1900 में सपोज अ पेजेंट हु इज हैविंग 10 acres ऑफ लैंड एंड ही इज सपोज टू पे 150 रुपी इन फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू देना था। पर 1900 में गुजरात का ये पेजेंट है या बिहार का ये पेजेंट है, एंड ही इज हैविंग 10 acres ऑफ लैंड अंडर हिज ओनरशिप एंड ही पेज 150 रुपी इन फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। ओके, सपोज इन 1900 इंडिया वाज और बिहार वाज स्ट्रक बाय अ फमीन हो गया, तो 150 की जगह पे दिया 100 रुपया, 1900 में दिया 100 रुपया, और बकाया जो हो गया इस पर कितना हो गया 50 रुपये, जो है वो 50 रुपी ये अरियर हो गया। ये विद द होप दैट इन 1901 दिस पेजेंट इज गोइंग टू पे 200 रुपी, 200 रुपया इस पर हो गया, 150 रुपया 150 रुपया 1901 का, और 50 रुपया बकाया, है ना। तो in 1901 he was supposed to pay 200 रुपी, बट 1901 में भी सूखा पड़ गया, तो ही पेड ओनली 50 रुपी ओवर हियर, यहाँ पे 50 रुपये दिया और 150 रुपया इसका बकाया हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1914 तक आते आते पता चला कि एवरी पेजेंट, पुअर पेजेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज हैविंग मोर दैन, ही वॉज सपोज टू पे मोर देन 1000 रुपी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ अरियर, बकाया के रूप में, और 1914 भी आ गया। तो prior to 1914 it was seen that the British government while collecting the land revenue they were having some sympathetic approach for the Indians के लिए सिंपैथी रखते थे, they were having some mercy for the Indians के लिए कहीं ना कहीं दया रहता था उनका। पर 1914 में because it was a question of life and death for the British government, अंग्रेजों के लिए खुद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी टफ वॉर, इट्स अ वेरी क्लोज वॉर, तो ऐसे समय में दे कुड हैव टेकन नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं ले सकते, एंड देयर एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड, and therefore just to meet the enhanced expenditure of the first world war, they became very merciless people, they became very cruel people, and they started
collecting the land revenue as well as the arrears from the poorest of the poor of India with great sternness and cruelty कि नहीं हमको दो, हमको पैसा दो। मैंने ये स्थिति कहा जाता है सर्वे समय कि नहीं अगर दे रहो, अगर सरकार ये कह रहा है कि सर हुजूर हमारे पास मात्र 50 रुपया है एंड माई वाइफ इज़ वेरी सीरियसली इल, तो विद द सपोर्ट ऑफ दिस 50 रुपया आई कैन गो टू हॉस्पिटल और आई एम गोइंग टू पे द लैंड रेवेन्यू और द अरियर। तो नहीं, तो बीबी के सामने जो है वो बीबी को दरवाजे पे खड़ा करवा दिया और खलिहान होता है ना, खलिहान का मेढ़ देखे हो जिसमें बैल चलता था, ठीक है, उस पर बांध के हस्बैंड को मार रहा है। तो नेचुरली कि द वाइफ इज़ डेफिनेटली गोइंग टू क्राई मर्सी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमारे हाथ में जो भी कंगन है या ये है जो भी ले लीजिए हुजूर, पर हमारे मालिक को मत मारिए। पर दिस वॉज इन फैक्ट द क्रूअलिटी और inhuman character that was witnessed by the Indian people during 1914. They started collecting the land revenue as well as the arrears from the poorest of the poor of India with great sternness and cruelty. And 99.9% of the people of India, they are peasants and they are poor peasants. ठीक है, poor peasants हैं और इनको अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं, इनसे अगर इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं तो नेचुरली कि दिस 99.9% इंडियन पेशेंट दे विल बी एंग्री विद यू और नॉट, दे विल बी एंग्री, दे वर एंटेगनाइज्ड, ठीक है, बट दे वर हैविंग द सेंस दैट दे वर नोइंग दैट एज सुन एज दे आर गोइंग टू रिवोल्ट इन पॉकेट्स तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आर हैविंग द रिसोर्स टू सप्रेस इट, सप्रेस कर देंगे। बट दे वर डेफिनेटली हैविंग द फायर इन देयर हेड एंड हार्ट, दिलो दिमाग में एकदम फायर था, एकदम आग का कॉन्फ्लैग्रेशन था उनके दिलो दिमाग में। एंड दे वर डेस्परेटली वेटिंग कि कब बदला अंग्रेजों से लिया जाए, इस दुर्व्यवहार का बदला अंग्रेजों से कब लिया जाए। एंड एज सून एज महात्मा गांधी ब्लू द विसल फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दिस 99.9% इंडियन पेजेंट्स दे थॉट नथिंग और दे डिड नॉट गिव अ सेकंड थॉट, second head, they simply plunged themselves into the non-cooperation movement. क्लियर हो गया? दो बातें आ गई समझ में? अरे बात सुन, में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि why the non-cooperation movement, which was in fact the first mass movement that was launched under the banner of Mahatma Gandhi, why it turned out to be a mass movement. उसी में क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि 1911 से लेकर 1919 तक के बीच में when non-cooperation movement was declared by Mahatma Gandhi, there was not even a single section of India that was not adversely affected by the decision of the British government. अंग्रेजी हुकूमत के डिसीजन लेने से कोई ऐसा वर्ग नहीं था हिंदुस्तान का जिसको एडवर्सली का हिंदी क्या होता है, विपरीत का, ये प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल का ये क्या होता है, प्रतिकूल होता है ना, एडवर्स। तो जिसका प्रतिकूल प्रभाव हिंदुस्तानियों पे नहीं पड़ा था, इसलिए हर वर्ग जो था इंडिया का विच वॉज हैविंग सम लेवल ऑफ एंटेगनिज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर वन रीजन और दी अदर, दे वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू शो देयर ग्राउस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाने इजहार करने का, इलस्ट्रेट करने का या एक्सपोज करने का वो मौका ढूंढ रहे थे। एंड दे गॉट द अपॉर्चुनिटी by the whistle blown by Mahatma Gandhi to show their participation in the non-cooperation movement, which was in fact going to give sleepless night to the British government. इसलिए everyone became proactive. ठीक है? आवाज़ तो सुन रहा है ना, आवाज़ें सुनो ना, आवाज़ें पैसा है, समझा? इसी के पढ़ने के देता 1.5 लाख रुपया 6 महीना में कोर्स करके घरे जो झूला टांग के IIT बॉम्बे, पीछे देखो ना झूला टंगले है, IIT बॉम्बे लिख ले है और हिस्ट्री पढ़ रहा है 1.5 लाख रुपया दे के पहले ही, ठीक है? उन लोग को भी बहुत लगता है, पर वो लोग थोड़ा समझदार हो जाता तुम लोग से। पढ़ो ये दो बातें समझ में आ गया है। फिर यहाँ पे देखिए 1914 में the third blunder committed by the British government, which proved to be a blessing in disguise for the Indians. बाल गंगाधर तिलक
Bal Gangadhar Tilak, he became or he was released from the cellular jail. याद होगा तुमको 1907 में, because he has written anti-British article in his newspaper Kesari. Anti-British को बोलते उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि दिस आर्टिकल इज सेडिशियस. सेडिशियस का मतलब होता है एंटी नेशनल, माने हिंदुस्तान को मान लिया था कि हमारा बपौती है. एंड इफ एनी इंडियन इज राइटिंग एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ही इज एक्चुअली डूइंग समथिंग एंटी नेशनल. ठीक है, बट दिस वॉज द रियलिटी. तो ऐसे समय में बाल गंगाधर तिलक जो है वो ही वॉज सेंट इनटू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम. बट इन 1914 विथ द थॉट 1914 में वो अंग्रेजों ने ये सोचा कि बाल गंगाधर तिलक बिकॉज ही इज फ्रॉम द रेडिकल फैक्शन ऑफ द कांग्रेस एंड दे वर हैविंग देयर ओन लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी, दे वर हैविंग देयर ओन फैनफेयर. इनके पीछे भी तो बैकिंग है ना भाई, कुछ लोग तो इनको सपोर्ट करते हैं. एंड दे नीडेड द सपोर्ट ऑफ इंडिया इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इंडिया का सपोर्ट उनको चाहिए था, पब्लिक ओपिनियन टू द फेवर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए था, बिकॉज one of the most important reason, one of the reason for the first world war was the construction of Berlin-Baghdad railway. बर्लिन बगदाद रेलवे का मतलब होता है कि बगदाद तक रेलवे बनेगा. बर्लिन से, जो जर्मनी से चल के बर्लिन से चलेगा और सीधे बाल्कन स्टेट में घुसेगा, ऑस्ट्रिया हंगरी में घुसेगा, इटली में घुसेगा, या सीधे ग्रीस से करके और सीधे निकल के आ जाएगा कहाँ पे, बगदाद पे. ठीक है, और बगदाद इट वॉज शेयरिंग कॉमन बॉर्डर विद, माने इट वॉज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है थोड़ा, माने उसके बाद ईरान, उसके बाद इराक. ठीक है ना. तो ईरान से अगर जर्मनी का अगर इफ द जर्मन फोर्सेस वुड हैव बीन और इफ द बर्लिन बगदाद रेलवे वुड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अगर हो गया होता तो पता चला कि 10 दिन पहले या 7 दिन पहले या 72 घंटा पहले, 4 घंटा लगता है वहाँ से जर्मनी से यहाँ पहुँचने में, बगदाद पहुँचने में. पता चला कि 1 वीक बिफोर the espionage of the British government, it gave information to the British Parliament that German forces are in Germany. So naturally, because they don't have any fast mode of transport and communication, so you could have been relaxed कर सकते थे कि जर्मनी का जब मार्च करेगा वहाँ से इंडिया के लिए या बगदाद के लिए, तो it is going to take more than 6 months for the German forces to reach over Turkey. ठीक, टर्की आने में लगेगा. पर यहाँ पे इफ द बर्लिन बगदाद रेलवे वुड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, अगर कंस्ट्रक्ट हो गया होता तो ये पॉसिबिलिटी था कि 72 घंटा पहले एस्पिनोज दिया कि भाई जर्मन फोर्सेज आर इन जर्मनी, और 72 घंटा में पता चला कि विद अ फ्लिप ऑफ एन आईलिड, मैंने पलक झपकते 72 घंटा के अंदर में जर्मन फोर्सेज वुड हैव बीन इन टर्की, वुड हैव बीन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान पे आ गया होता, ब्रिटिश इंडिया के नज़दीक आ गया होता. तो अगर और इंडिया के कोई लोग सपोर्ट नहीं किए होते, पब्लिक ओपिनियन ऑफ इंडिया वुड हैव बीन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो दे वुड हैव इनवाइटेड द जर्मन फोर्सेज इनटू इंडिया. ऐसा सोचेगा ना सरकार. तो जर्मनी ने क्या, ये इंग्लैंड ने क्या सोचा कि बिकॉज दे नीडेड द सपोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑफ इंडिया टू देयर फेवर एंड देयरफॉर दे रिलीज बाल गंगाधर तिलक को निकाल दिया, रिलीज कर दिया. और बाल गंगाधर तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक थे, ही वॉज हैविंग हिज ओन मेंटल मेकअप ऑफ अनोइंग द ब्रिटिश, ऑफ डिफीटिंग द ब्रिटिश एनी हाउ. एंटी ब्रिटिश उनका कैरेक्टर हो गया था. ठीक है ना. तो एज सुन एज ही वॉज रिलीज फ्रॉम सेलुलर जेल, एज सुन एज ही बिकेम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन मासेस, नाउ ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट विच इज होम रूल मूवमेंट शुरू किया. होम रूल मूवमेंट इन इटसेल्फ इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो द होल बाय 1914 और बाय 1915 यू कैन से 1915 तक आते आते आप कह सकते हो कि बाय 1915 द होल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वाज बर्निंग विथ एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स. इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ बाल गंगाधर तिलक, जरूर उसमें इनपुट था उनका बाल गंगाधर तिलक, ही वाज नॉट द ओनली फैक्टर, पर एंटी ब्रिटिश फीलिंग से पूरा हिंदुस्तान का राजनीतिक अरेना जो था इट वाज बर्निंग विथ एंटी ब्रिटिश फीलिंग. यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर.